ایران کی سیہونی ریاست پر تابڑتوڑ حملے، پہلی بار اپنے جدید دور مار سجیل بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا۔ ایران نے ملٹیپل ری انٹری ٹارگیٹیبل میزائل بھی داغ دیے۔ میزائل بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے حملوں میں سینکڑوں اسرائیلی زخمی، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ اسرائیل کے پاس میزائل روکنے والے انٹرسیپٹرز تیزی سے کم ہونے لگے۔ پاسداران انقلاب کے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی دھمکی، کہا کہ اگر نتن یاہو اب تک زندہ ہے تو اس کا تعاقب کریں گے۔ صہیونیوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ اسرائیل میں نہ رکنے والی ایمبولینسز کی آوازیں ہماری کامیابی کی عکاس ہیں۔ دیوہیکل میزائلوں سے اسرائیل کے صنعتی مراکز کو نشانے پر لے رکھا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے نتن یاہو کے قتل کی خبر کو افواہ قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کا سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ، F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب نے کہا کہ خلیج کی جانب داغے گئے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا۔ دبئی میں ڈرون حملے میں سٹی بینک کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ عراق کے شہر اربیل میں ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ریڈار سسٹم پر ڈرون حملہ۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کی بڑی کمپنیوں کو خطے سے فوری نکل جانے کی وارننگ دے دی۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو مشرق وسطی چھوڑنے کی ہدایت۔ جیفری ایپسٹین گروہ 9/11 جیسا واقعہ کروا کا الزام ایران پر ڈال سکتا ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا انکشاف۔ ایران ایسے دہشت گردانہ منصوبوں کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ ہماری جنگ امریکی عوام سے نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش سے ٹرمپ پریشان، مختلف ممالک سے مدد مانگ لی۔ کہا کہ امید ہے چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر ممالک جنگی جہاز بھیجیں گے۔ کسی نہ کسی طرح ہم جلد ہی آبنائے ہرمز کو کھلا سکیں گے، محفوظ اور آزاد بنا دیں گے۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران کے جزیرے خارق پر حملے کا اشارہ، کہا کہ ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دے دی۔ خارق جزیرے کا زیادہ تر حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ممکن ہے کہ جزیرے پر صرف تفریح کے لیے چند بار اور حملہ کریں۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی ایران کی پیش کردہ شرائط اچھی نہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ نئے سپریم لیڈر ممکنہ طور پر زندہ نہیں۔ یہ خبر افواہ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور سرنڈر کریں۔ چین سمیت تمام ممالک کا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کی مدد سے انکار۔ امریکہ اپنے ہرمز محفوظ بنانے کے لیے دوسروں سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کئی ممالک یہاں تک کہ چین سے بھی بحری جہاز بھیجنے کی اپیل کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ کی سیکورٹی چھتری کئی سوراخ ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ایران پڑوسی ممالک سے غیر ملکی فوجی موجودگی ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ خطے میں کشیدگی کی اصل وجہ اسرائیل ہے۔ امریکہ نے خارق جزیرے پر حملے راس الخیمہ اور دبئی کے قریب سے کیے۔ ان حملوں کا جواب دیں گے۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی حملے میں زخمی ہوئے، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے بحری راستے برادر خلیجی ممالک میں اشیاء خورنوش کی برآمد کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر ملک میں غذائی صورتحال اور وافر اشیاء کی برآمدات پر جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ عالمی سپلائی چینز متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کے برآمد کے استعداد میں اضافہ ہوا۔ خلیجی ممالک کو درکار اشیاء خورنوش کی فراہمی اور ان کے غذائی تحفظ کا خیال رکھا جائے۔ پاکستانی غذائی ضروریات کو متاثر کیے بغیر وافر مقدار میں موجود اشیاء خورنوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے جامع لاحمل تشکیل دیا جائے۔ برآمد کرتے وقت اعلیٰ معیار یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم کی برادر خلیجی ممالک میں تعینات سفیران اور ٹریڈ افسران کو متحرک رہنے کی ہدایت۔
ऑपरेशन गज़ब-उल-हक़ के तहत पाक अफ़वाज की अफगानिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ। कंदहार में अफगान तालिबान और दहशत गर्दों की टेक्निकल तंसीबात तबाह। ज़ेर ज़मीन टनल अफगान तालिबान और दहशत गर्द बतौर टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज इस्तेमाल करते थे। बादानी पोस्ट को मुख्तलिफ ज़मीनी हथियारों और क्वाडकाप्टर के जरिए मुकम्मल तबाह कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ऑपरेशन गज़ब-उल-हक़ में अब तक 684 जंगजू हलाक, 912 जख्मी हुए। दहशत गर्दों की 252 चेक पोस्टें, 229 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह कर दी। दहशत गर्दों के 73 ठिकानों पर फजाई हमले किए गए। पाक फौज की कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों तक महदूद रहीं, शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में फौजी तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का अफगान तालिबान का दावा बेबुनियाद है। अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ अहदाफ जायज़ हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी से बाज आ जाए। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन से फितन ख़वारिज और दहशत गर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुज़ाहिरा खेज़ और मुनाफिकाना है। दहशत गर्दों की भारत की जानिब से सरपरस्ती और मुआवनत सब पर आया है। शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ भारत को इस तरह के बयानात का कोई हक नहीं। भारत अफगानिस्तान समेत खित्ते में तकरीबी किरदार अदा कर रहा। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सदर ज़रदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का भी जायजा लिया। कौमी यकजहती, सियासी हम आहंगी और जमहूरी अमल के तसलसल की अहमियत पर भी गुफ्तगू। सदर का मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर जोर। निहाल हाशिमी का गवर्नर हाउस सिंध के ऑडिट का ऐलान। कहा कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इदारों का ईद के बाद ऑडिट होगा। गवर्नर हाउस आवाम का घर है, यहाँ प्रेशर की जगह नहीं। यहाँ यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को रोजगार, तालीम और ट्रेनिंग के मौके मिलेंगे। नवाज शरीफ का फलसफा है पहले पाकिस्तान फिर पार्टी। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी शोहरत का कोई ख्याल न करें, मुझे तनकीद करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। मलीर के घर में रहता हूँ, पड़ोसी आज भी मेरे साथ है। पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मुख्तस। ऑनलाइन अप्लाई के लिए 29 मार्च की आखिरी तारीख मुकर्रर। इंटर्नीज को माहाना 60,000 रुपये वजीफा मिलेगा। 3 माह बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि इंटर्नीज को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी और पॉलिसी यूनिट में काम का तजर्बा हासिल होगा। हर नौजवान माहौलियात की बेहतरी में किरदार अदा कर सकता है। दिन रात मेहनत से लाहौर समेत पंजाब में आलूदगी का ग्राफ नीचे आ रहा है। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने जुनेद सफदर के बयाना जाने को झूठ करार दे दिया। कहा कि जुनेद सफदर अपनी अहलिया के हमरा रायमंड में अपने घर पर हैं। झूठ और फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पहले CM मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक झूठ फैलाया गया, अब उनकी फैमिली से मुतालिक मन घड़त खबरें बनाई जा रही हैं। जितना जोर झूठ बोलने पर लगाया जा रहा, काश इतना अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोचा होता तो शायद आज अवाम झूठ पर यकीन कर लेती। बुक से मरियम नवाज में कहाँ तक गिरोगे? अब कोई मजलूमियत, मासूमियत, सियासी इंतकाम कार्ड नहीं, झूठे का मुंह काला करना होगा। पंजाब हुकूमत का सरकारी जहाज के मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मामले में मुलव्विस हर फर्द और प्लेटफॉर्म के खिलाफ हत्या इज्जत कानून 2024 के तहत अदालतों से रुजू किया जाएगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो इदारों को बदनाम और आवाम को गुमराह करके अपने अंजाम से बच जाएंगे, वो कानून का सामना करने के लिए तैयार रहें। मुसलसल झूठ फैलाने वालों और अफवाहें घड़ने वालों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बहुत हो चुका।
खैबर पख्तूनख्वा में कैशलेस पेमेंट इनिशिएटिव का आगाज, 100 से जायद खिदमात डिजिटाइज कर दी गई। बंदोबस्ती और जम अजला में 500 सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। सूबे में गवर्नेंस से मुतालिक वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर सोहेल आफरीदी ने कहा कि गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत सरकारी इदारों की कारकर्दगी को मौसर और जवाबदेह बना रहे हैं। अवाम को बरवक्त और मयारी सहूलियात की फराहमी और इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाकर अवामी एतमाद बहाल किया जा रहा है। ईद उल फितर के मौके पर 20 और 21 मार्च को आम तातीलात का ऐलान। इत्तलाक 5 और 6 रोजा वर्किंग वीक वाले दफातर पर होगा। 22 मार्च को इतवार के बायस आम तातील होगी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की सरकारी छुट्टी होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर से पहले जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। IG सिंध, कमिश्नर्स और ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी। कार्रवाइयों की रोजाना रिपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट को इरसाल करने का हुक्म। हुकूमत सिंध ने मामले को फौरी और तरजीही बुनियादों पर निपटाने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान रेलवेज का ईद के मौके पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी। तीसरी 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला वज़ीर रेलवे की हिदायत पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए किया गया। वज़ारत मज़हबी उमूर की हज फ्लाइट्स की मअतली से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा कि आलमी हालात के बायस हज परवाज़ों के अल्तवा की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हज 2026 के तमाम इंतज़ामात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं। परवाज़ों के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान ईद उल फितर के बाद किया जाएगा। आज़मीन हज गैर मुसद्दक़ा खबरों और अफवाहों पर तवज्जो न दें। सिर्फ सरकारी ऐलानात और मुस्तनद ज़राए पर एतमाद किया जाए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मरी में यालाबारी, सर्दी लौट आई। बारिश के बाद मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में 1 घंटे के दौरान 6 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लेक में कटारियां पर पानी की सतह 4.5, ग्वालमंडी में 1 फीट तक बुलंद हो गई। पॉपुलियो की एक बार फिर मशरक़ वस्ता में अमन की अपील। कहा कि अफ्रीकन जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। मशरक़ वस्ता के लोग होलाक जंग का शिकार हैं। स्कूल्स, अस्पताल और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। बड़ी तादाद में बेगुनाह लोग मारे जा चुके। जंग की वजह से हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दिया। 54 टेस्ट, 61 T20 और 117 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी को एजाज करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रिटायरमेंट पर एजाजी शील्ड दी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सरफराज अहमद की गिना कदर खिदमात को सराहा। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को कामयाबियों से सरफराज किया। पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा आपके एहसानात की मकरूज रहेगी। आपके तजर्बे और सलाहियतों से इस्तिफादा जारी रखेंगे।